Hello students, welcome to important questions for upcoming exam. And I have already started uploading this algebra questions, geometry question, and I have decided that I'll be uploading arithmetic questions, right? And so today the topic will be percentage, and we'll be solving lot of new questions along with the PYQs. And these questions are, of course, will let you know that how to tackle the question in the exam and while you are practicing or in the mock also, right? So first of all, initial questions will be warm up so that you can understand the basic concepts, and उसके बाद हम लोग previous year questions solve करेंगे, right? So without wasting much time, let's start. So we have the first question. Ramesh usually save 36% of the monthly income. In 1 month, he gives some donation, hence its monthly expenses increase by 25%. He manages to save 37,000 in that month. So we have to find the monthly salary of the Ramesh or whoever the person, right? So whenever you don't have any data and the percentage given is in the whole number or natural number, you can always start with 100, right? 100 का मल्टीपल आप लेना शुरू कर दीजिए. तो मान लेते हैं जो इनकम होता है आपको ये पता होना चाहिए, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स. So let the income is 100x and initially the person is saving 36%. So 36x was savings and remaining 64x was the expenditure. Now in 1 month he gave donation, hence his monthly income, monthly expenses increased by 25%, right? तो एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट होता है 25%. 25% यू नो दैट इज 1/4. भाई 25% मतलब 1/4 हो गया ऑफ 64. ऑलवेज आस्क ऑफ किसका, आपको पता चलेगा कि आपको 25%, 10%, परसेंटेज किसका सॉल्व करना है. So that is 1/4 of 64 will be 16x. So new expenditure would be 80x, right? That is 16x plus हो जाएगा ना, 64 plus 16 should be equals to 80 and remaining will be the savings, right? And it is not saying that there is any increase in the income. So 100x would be equals to 80 plus 20 now. Now it is saying he manages to save 37,000, right? तो 37,000 सेविंग्स है और मेरे अकॉर्डिंग जो सेविंग्स है वो 20x का सेविंग है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 37,000 है, राइट? तो 20x को अगर आप 37,000 बोलते हैं तो 100x जो कि उसका कंप्लीट इनकम है, दैट इज इनिशियल इनकम 100x बोल तो 5 टाइम्स करेंगे. तो जब आप इसका 5 टाइम्स करोगे तो विल बी गेटिंग 175 एंड 30. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज 175,000. आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, बिकॉज हर क्वेश्चन में आप नया कंसेप्ट लगाओगे तो मुश्किल हो जाएगी. तो आपको एक बेसिक अप्रोच हमेशा आना चाहिए, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये बेसिक्स जो क्वेश्चन है, वार्म अप क्वेश्चन, आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना. नाउ ड्यू टू 37.5% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ चॉकलेट, आनंद bought 21 extra chocolate for his daughter at the same price in which he usually gets a chocolate, right? So there are multiple ways of solving this question. So now 37.5%, and if you have missed the percentage videos, I have already uploaded them so that आप उनको भी देख सकते हैं, right? So 37.5% is nothing but 3/8. So as I told you in the learning videos that the base is representing the original value. So I can assume the initial price was 8x. Now price has been dropped by 3 units. So new price would be 8x minus 3x and that would be 5x, right? 3x से drop करेंगे तो it would be 8x initial and 5x final, right? Now it is saying that there is सेम एक्सपेंडिचर सेम प्राइस, राइट? तो एक्सपेंस का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो एक्सपेंस जो होता है वो होता है दैट इज प्राइस इनटू कंजम्पशन या क्वांटिटी. और प्राइस जो है ना ये यूनिट प्राइस है, राइट? यूनिट प्राइस, आप पर यूनिट का कितना प्राइस. तो इट इज सेइंग दैट इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड फाइनल एक्सपेंडिचर इज सेम, देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर. सो आई कैन से E1 इक्वल्स टू E2. तो E1 वाज P1 इंटू Q1 and this expenditure second was P2 into Q2, of course, right? So P1 is given to us 8x
into Q2 and P2 becomes 5x into Q2. दिस इज Q1 राइट. तो यहाँ से Q1 और Q2 का जो रेशियो आएगा दैट वुड बी 5/8. So I can assume that initially the person was consuming 5 units and now the person is consuming 8 units. So there is an increment of 3 units, right? And there is an increment of 3 units. So according to the question 3 unit का मतलब है 3 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ गया. इसका मतलब 21 जो चॉकलेट है वो 3 यूनिट्स के बराबर है. आई होप इट इज़ क्लियर. तो आई कैन से ये जो 1 यूनिट का वैल्यू है वो 7 चॉकलेट के इक्वलेंट है. दैट्स इट राइट. So we have to find the A. A was the initial chocolate. He usually get 8 chocolates. So we have to find the. तो usually मतलब initial consumption कितना था. तो initial consumption was Q1 that is equals to A और I can say 5 unit. तो 1 यूनिट का मतलब 7 है तो ये 35 चॉकलेट्स हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. आई होप इट इज क्लियर राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. P is a number such that 80% of P is more than 57%, right? इसका मतलब सेम नंबर है. आप 80% कैलकुलेट करो और 57% कैलकुलेट करो. द डिफरेंस इज 25,300. So 80% of P whenever we have more than, less than, exceed, fewer, difference पे काम करना है. So 57% of the same number and it is saying that 25,300 is a difference. So 20 that is 80 minus 57 is 23% upon 100 into P that is 253. और ये 23 का 11 टाइम्स अगर मैं करूँगा तो आई विल बी गेटिंग 253. तो P वुड बी इक्वल्स टू 11 0 इंटू 00. तो ये हो जाएगा 1,10,000. So we have to find the 116% of that number, right? So we have to find this 116% of P. So 116 upon 100 into, so ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 116 इंटू 1100. तो लास्ट में 2 0 आएगा और यूनिट डिजिट 6 आएगा. तो ऑप्शन तो मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन. एक बार चेक कर लेते हैं राइट. तो 11 इंटू 6 66. 6 इज अ कैरी. 11 1 जाए 11 और 6 22 एंड 11 1 जाए 11 and 2 13. तो माई आंसर वुड बी 1326 राइट. एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर मैं गलत नहीं. तो 1100 इंटू 116. तो एक काम करते हैं 116 इंटू 11 कर लेते हैं. तो 116 तो दिस इज मैंने कुछ एरर कर दिया था. ओह ठीक है. आई थिंक कुछ एरर यहाँ पे हो गया कैलकुलेशन में. So that will give me another chance. Okay. So this is 0 0 11 6 is 66. 6 is the carry. 11 1 जाए 11 और 6. अच्छा यहाँ पे हमने 6 काउंट कर लिया था. 17 and 11 1 जाए 11 plus 1 12. तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है. आई होप इट इज क्लियर राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. These are new question, warm up questions. You must try these questions, right? Sonia saved 18.75% of her income. A year later, her income shoots up by 37.5%, but her saving remains as it is, right? There is no change in the savings, so we have to find the approximate percentage increase in her expenditure, right? So initial income was 100x as I assumed in the previous also. So savings is 18.75x. And the remaining will be the expenditure that is 0.2590 71.25x. That was the expenditure plus savings equals to income, right? Income बढ़ गया उसका 37.5%. So this is 137.5x, right? Increase हो गया 37.5% से. As a result, there is no change in the savings. So savings remains as it is. इसका मतलब बाकी जो हिस्सा है वो उसका चला गया एक्सपेंडिचर में. तो उसका जो एक्सपेंस आएगा 137.50 और 18.75. सो दिस इज 5. 15 में से 7 गए 8. यहाँ पे बचेगा 2. 132 14. तो 114.85 राइट. अब आपको परसेंटेज चेंज पूछा है राइट. अगर आप इसको सोचोगे ना तो ये बहुत गंदा कैलकुलेशन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये तो कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा. ठीक है ना.
तो उसको कैसे हम कट शॉर्ट कर सकते थे उस पर आई थिंक मुझे बात करनी चाहिए, राइट। हालांकि यहाँ से भी हो जाएगा। अगर मैं दैट इज चेंज देखता हूँ, चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ से जो चेंज आएगा एक्सपेंडिचर में दैट इज 0.60 और 3 और 4, 43.6x का इंक्रीज हो गया, राइट। तो 43.6 से इंक्रीज हो गया, राइट। तो कितना परसेंट चेंज आएगा ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम कट शॉर्ट वाले तरीके से देखते हैं, उसी ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि 18.75 जो परसेंट है उसका थोड़ा सा फ्रैक्शन अगर मैं बना पाता हूँ तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो आई कैन से दिस इज 18 प्लस 0.75, राइट। So 18% can be written as 18 upon 100 and 0.75 once it is परसेंट। नाउ इसका रिमूव करेंगे फ्रैक्शन डेसिमल, तो दिस वुड बी समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दिस इज 25, तो ये 3/400 प्लस ये 72 अपॉन 400 हो गया भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 अपॉन 400 और 25 3 जा 25 1 जा, तो ये 3/16 हो गया, राइट। तो ओवरऑल जो है वो 3/16 है फ्रैक्शन में, राइट। इसका मतलब क्या है कि उसका अगर इनकम 16 है तो 3 रुपये उसका सेविंग्स है, 3 क्या है उसका सेविंग्स। तो अगर मैं इस कंसेप्ट से बात करता हूँ 3/16 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम वाज 16x, तो expenditure was 13x and saving was 3x. No problem in that, right? Now it is saying that income has to be increased by 37.5%. You know 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8, तो आपको इंक्रीज करना है 37.5%, राइट। तो ये कितना होगा 37.5% से इंक्रीज करना है। तो आई कैन से 3/8 ऑफ 16x, खुद से पूछो किसका, हाँ तो ये हो जाएगा 6x से इंक्रीज, तो ये हो जाएगा दैट इज 22x। तो इनकम उसका 22 हो गया। एज गिवन इन द क्वेश्चन देयर इज नो चेंज इन द सेविंग्स, तो अल्टीमेटली द एक्सपेंडिचर वुड बी 19x, राइट। तो पहले एक्सपेंस उसका 13 था, अभी 19 हो गया। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो परसेंटेज चेंज, तो कितने परसेंट का चेंज आएगा, राइट। अब सोच के देखो कि द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इंक्रीज बाय 6x, 13 से 19 मतलब 6x, तो 6x अपॉन 13x इंटू 100, राइट। तो यहाँ से अब सॉल्व करोगे 13 का हाफ होता है 6.5, थोड़ा सा कम है, मतलब 50 से कम आएगा, थोड़ा ही कम। 1/13 जो होता है दोस्तों, इसका जो परसेंटेज पार्ट होता है 1/13 का फ्रैक्शन पार्ट हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो दिस इज 7.7%, राइट, 7.7। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 7 6 42 और 4 46, राइट। तो ये 46.2, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको 48 पे मार्क करेंगे, राइट। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज पूछा, राइट। 46 आ रहा था क्या, 46.2, तो आई थिंक क्लोजेस्ट ऑप्शन जो हमें मार्क करना चाहिए इट वुड बी ऑप्शन बी। तो बी इसका राइट आंसर बनेगा, नॉट ए, राइट। तो बी इसका राइट आंसर, राइट, क्योंकि 1/13 एज आई टोल्ड यू इट इज़ 1/13 का जो परसेंटेज पार्ट होता है दैट इज 7.7%, और आपको 6/13 करना है, इसका मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 इस पर थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज ऑप्शन बनेगा, राइट। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। If the present cost of an article is 2916 and the annual rate of inflation for that article is 166.67%, what will be the cost of the same article 3 years after, right? 3 साल बाद उसका वैल्यू कितना होगा। तो 166.67 को अगर मैं स्प्लिट कर पाता हूँ तो यू विल बी सेइंग 100 प्लस 66.67 एंड 100% का मतलब तो 1 हो गया, और 66.67 का जो फ्रैक्शन है वो 2/3, इसका मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा 5/3। द पॉइंट इज दैट कि पहले वैल्यू P1 अगर 3 है तो इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगी, बिकॉज इट हैज़ टू बी इंक्रीज बाई 5, आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो हर साल वैल्यू 3 से 8 हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 3 बिकम 8, तो इट हैज़ टू बी फॉर 3 years, राइट। तो
तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है बेसिकली, मतलब 8/3 फॉर द फर्स्ट ईयर, 8/3 फॉर द सेकेंड ईयर, 8/3 फॉर द थर्ड ईयर ऑल्सो, राइट। 3 से 8, 3 से 8, 3 से 8 लगातार ऐसा हो रहा है। तो दिस इज अ फाइनल इनटू यहाँ पे इनिशियल, ये बात समझ में आती है, राइट। नाउ तो दिस इज 512/27 इंटू द इनिशियल वैल्यू इज गिवन टू अस 2916। तो 27 एकम 27 बचेगा 2 यहाँ पे, और 27 इंटू 8, तो 108, 108 इंटू 512। तो लास्ट में 6 आना मैंडेटरी है, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा, नन ऑफ दीज नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज 8 इंटू 2 करोगे तो 6 आएगा, बाकी सब में 0 0 है, तो 6 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द प्राइस ऑफ द बाइसिकल फर्स्ट इंक्रीज बाई 11.11%, देन 16.66%, देन 7.7%। उसके बाद उसका वैल्यू 9800। तो मैंने क्या बोला, फाइनल इक्वल्स टू, दैट इज फर्स्ट हम लेते हैं 11.11% का इंक्रीज, उसके बाद 16.66% का इंक्रीज, एंड उसके बाद 7.7% का इंक्रीज, उसके बाद उसका इनिशियल वैल्यू, ऐसा हुआ है, राइट। ये इंक्रीज है, तो 11.11% यू नो दैट इज 1/9, भाई 11.11% का फ्रैक्शन होता है 1/9, मतलब 9 से वैल्यू हो जाएगी 10, तो आई कैन राइट 10/9, 16.66%, हाँ, तो 16.66% इज 1/6, तो ये हो जाएगा 7/6 इंटू 7.7%, दिस इज 1/13, 7.7% का फ्रैक्शन होता है 1/13, ये हो जाएगा 14/13, और ये वैल्यू नहीं पता, लेकिन फाइनल वैल्यू मुझे पता है 9800। तो 14 सत्ते 98, ये 100 हो जाएगा, और 10 से 10 हो जाएगा, तो जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 13, तो लास्ट में 0 आएगा, 9 6 54, 54 इंटू 13, तो उसके वैल्यू 2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई देता है, दैट इज 7020। आई होप इट इज क्लियर, आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ ही जाएगा, राइट। तो आपको थोड़ा सा यूनिट डिजिट वगैरह का आइडिया होगा, तो आप बीच में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं यूजिंग द ऑप्शन, सो दैट आपको शॉर्ट हो जाएगा ना भाई। 4 ऑप्शन है, लास्ट में 0 है, 0 आ गया, उसके पहले 2 है, तो एक ही ऑप्शन है, उससे पहले 2 वाला, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज 540 प्लस 162, तो आप जब चेक कर लीजिए, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 15% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, राइट। तो टोटल वोटर पहले आते हैं, उसके बाद डिड नॉट वोट, उनको माइनस करना पड़ता है, माइनस करने के बाद आता है वोट कास्ट, वोट कास्ट में से इनवैलिड वोट अगर मैं माइनस करता हूँ, तो फिर आता है वोट वैलिड, राइट, वैलिड वोट। और दोस्तों वैलिड वोट के अंदर ही विनर और लूजर डिसाइड करते हैं, वही छुपा होता है। तो 15% ने तो वोट ही नहीं डालना, मान ली टोटल 100x है, तो डिड नॉट वोट DNV, ये 15% ऑफ 100x, सो ये हो जाएगा माइनस का 15x, तो ये बचेगा 85x, राइट। नाउ 3900 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, तो माइनस का 39 और करेंगे, तो 85x माइनस का 39, ये दोस्तों वैलिड वोट्स हैं, हाँ, ये वैलिड वोट है, इसी में जीत और हार है। द विनर गॉट 57% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय द 1120, राइट। अब यहाँ पे बात को समझने वाला है कि 100x था, यहाँ पे 85x है, तो यहाँ पे दोस्तों 85x माइनस 3900, ये टोटल वोट है, ये वोट कास्ट है, और ये दोस्तों वैलिड वोट्स है, राइट। अब इसमें से विनर और लूजर निकला है, तो विनर को मिला है 57%, तो आप सोच के बताओ 57% ऑफ वैलिड वोट, तो लूजर को बाकी मिलेगा 43% ऑफ वैलिड वोट। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा जीत और हार का, तो 57 माइनस 43, 14% ऑफ वैलिड वोट। और ये दोस्तों जो डिफरेंस है वही जीत और हार का अंतर है, 1120। यहाँ पे दोस्तों 1120 दे रखा है, तो दिमाग में देखते ही घंटी बजेगी, बजनी भी चाहिए बिल्कुल, 1120, तो 14 इंटू 8 होता है। टेबल जितने आएंगे उतना आपको ये डिजिट देखने में आसानी होगी, तो वैलिड वोट्स आपके पास आ जाएंगे 8000, राइट। तो यहाँ पे 8000 वोट वैलिड है। आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन द वोटिंग लिस्ट, राइट। तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, 8000 तो यहाँ पे आ गए, हाँ, ये 8000, ठीक है। तो आई कैन से 8500,
एक्स माइनस 3900 का वैल्यू 8000 आ गया। यहाँ से 85x का वैल्यू कितना आएगा, 11900 आ जाएगा भाई, 8 3 11900। तो x का वैल्यू आ जाएगा 119/00/85। मुझे देख के 17 का टेबल याद आ रहा है, आपको भी आ ही जाएगा। 17 5 जा, 17 7 जा, एक्स का वैल्यू 14 आ जाएगा और 2 जीरोस के आगे। तो एक्स इज कमिंग आउट टू बी 1400। तो जैसे ही 1400 आपको समझ में आएगा, 1400 ही 140 आएगा। हाँ 140, 140 नॉट 1400, 140। तो x का वैल्यू जैसे ही आपके पास 140 आ जाएगा, तो टोटल जो वोटर्स हैं, जो वैलिड वोट हैं, 100 इंटू 140, तो 14,000 वोट की लड़ाई थी ये। आंसर आपको आ ही गया होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। द प्राइस ऑफ ए वॉच इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, देन डिक्रीज बाई 5%। द प्राइस ऑफ अनदर डिजिटल वॉच फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%, देन डिक्रीज बाई 10% इफ द फाइनल प्राइस ऑफ बोथ इज सेम। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल प्राइस, राइट। तो पहले आपके पास वॉच ऑफ ए डिजिटल वॉच ऐसा है। तो फाइनल मैंने अभी बताया ना भाई, पहले 20% से इंक्रीज़ हो गया। तो 20% से इंक्रीज़ होने का मतलब है 120% ऑफ इनिशियल हो गया, और फिर 5% से डाउन हो गया तो 95%। 100 से नीचे 5, 95, 100 से ऊपर 20, 120 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। सिमिलरली डिजिटल वॉच के केस में जो फाइनल है, इसको F1 I1 मान लेते हैं, F2, राइट। ये बोलता है कि पहले 25% इंक्रीज, तो मतलब 100 से ऊपर 25, तो 125% हो जाएगा दोस्तों। और 10 से डाउन हो गए तो 90% बचेगा, 100 माइनस 10 90, और ये इसका I2, राइट। तो ये बोलता है F1 और F2 बराबर हो गया। तो इस केस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, 120 इंटू 95 इंटू I1 शुड बी इक्वल्स टू 125 इंटू 90 इंटू I2, राइट। आपको I1 और I2 का रेशियो तो निकालना है, तो क्यों मेहनत करनी है। 5 से 24 और 5 से 25 और 5 से 19 और 5 से 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 18 इंटू 25 अपॉन 24 इंटू 19। तो और भी डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 6 से 18 और 3 8 जा 24, राइट। और बल्कि और भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा, तो 75/76 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको देखिएगा यहाँ पे ए, राइट। ए इसका राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वार्म अप क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो आपके तरीके आपको आ जाएंगे यार, कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। 9.09% of the voters did not cast their vote in an election involving two candidates. 11.11% of the vote polled were declared invalid, right? तो 9.09%, that is 1 by 9. 11.11%, 1 by, सॉरी ये 1 by 11 होता है, ये 1 by 9 होता है। And the losing candidate got 33.5% of the valid votes, right? And lost by 39,600. तो number of voters enrolled, right? तो यहाँ पे अगर मैं कभी भी ऐसा कोई केस है कि आपके पास परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो आप हमेशा अज्यूम करो इनिशियल वैल्यू जो इनका डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है। तो हम ये मान लेते हैं टोटल वोट्स जो है वो 99 है। उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले टोटल वोट में से आपको डिड नॉट वोट, हाँ DNV, तो DNV है 9.09%, राइट। तो अगर मैं 1/11 ऑफ 99 करूँगा तो मुझे मिलेगा 9। तो 9 माइनस करने के बाद आपके पास ये वोट्स आ जाएंगे 90, ठीक है, 90। एंड उसके बाद इसमें से इनवैलिड वोट हैं 11.11%, जिसका वैल्यू 1/9 होता है। तो 1/9 ऑफ 90 इज 10। तो आपके पास 10 माइनस करने के बाद बचेगा 80, और ये आपके वैलिड वोट्स हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो ऐसे थोड़ा साइकिल या सक्सेसिव बनाना आना चाहिए। The losing candidate got 33.5% ऑफ द वैलिड वोट, राइट। अब यहाँ पर 33.5 तो इसको मिल रहे हैं ऑफ वैलिड वोट्स, तो जीतने वाले भाई साहब को कितना मिलेगा भाई, बाकी जो बचेगा 100% के हिसाब से, तो 33.5 इधर चला गया, तो ये बचेगा 34 66 66.5% ऑफ वैलिड वोट्स। आप सोच के देखो 66.5% और 33.5%, तो इनका डिफरेंस कितना है भाई, 66.5% और 33.5% का डिफरेंस कितना आएगा, 33%। तो जो विनर है
और जो लूज़र है उनका जो डिफरेंस है वो 33% ऑफ वैलिड वोट्स के बराबर है, जो जीत और हार का अंतर है। तो 33/100 इंटू वैलिड वोट्स, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैलिड वोट्स का डिफरेंस है 39,600 है, 39,600। तो 33 बन जा 33, बचेगा 6, तो वैलिड वोट्स आ जाएगा दोस्तों 12, 1,20,000, राइट, 1,20,000। अब क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, टोटल वोटर जो आपके वोटिंग लिस्ट में है, राइट। तो भैया वैलिड वोट्स आपके अकॉर्डिंग 80, है ना, 80 यूनिट्स का था ना। आप देखोगे वैलिड वोट 80 यूनिट्स है। तो आप ये कहना चाहते हो कि 80 का मतलब तो है 12 के आगे 40, 12 का, राइट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 80, तो 15×8 = 120, और 15×8 = 120 और 2 0, तो 1 यूनिट का मतलब है 1500। अब आपके पास जो टोटल वोट आपने जो अज्यूम करे थे वो 99 यूनिट अज्यूम करे थे ना, 1500 इंटू 99, तो 2 0, और लास्ट में 9×5 = 45, सब में ही आ रहा है, तो सॉल्व करने के अलावा कोई चारा बचा है तो 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 और 13 148। तो ऑप्शन नंबर आपको देखिएगा सी, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राहुल स्पेंड 12.5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, 16.66% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द फूड, 18.75% ऑन द एजुकेशन एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। अब ये रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा वो 100% के हिसाब से रहेगा या 1 में से, ठीक है। तो हम फाइनल इनकम की बात करते हैं ना, फाइनल। तो फाइनल इनकम में पहले 12.5% करेंगे, तो 8 में से एक खर्चा हो गया तो 7/8 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। अब उसका रिमेनिंग 1/6, तो 1/6 में से 6 आपके पास था, एक खर्चा हो गया तो ये 5/8 बचेगा। उसके बाद 16 में से 3 चले गए तो 13/16 बचेगा, और उसके बाद 3 में से एक चले गए 2/3, और इनिशियल आपके पास है, ठीक है। ये फाइनल बचेगा। इनिशियल दे रखा है क्या, नहीं, ठीक है, ये इनिशियल। तो ये दोस्तों जो फाइनल सेविंग्स है ये दे रखा है 27,300। तो ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 8/7, 5/8, कुछ कुछ तो कैंसिल आउट हो ही रहा होगा, और नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, 7 × 5 × 13 × 2 और 8 × 8 × 16 × 3 इंटू इनकम, राइट, इनिशियल। तो देखो ये सब कुछ ही कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 के 21 और 7 में 63 और 13 × 3 = 39 और 2 से हो गया 150। तो इनिशियल इनकम आ जाएगा दोस्तों I = 150 × 64 × 48, राइट। तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, कोई चारा बचा नहीं है। 150 × 64 × 48, राइट। तो इसको कर लेते हैं पहले, 0, 48 पंजे 240, 48 एकम 48, 24 72 इंटू 64, 2 0 चिपका देंगे, 64 दूनी 128 और 64 × 7, 7 चौके 28, 7 42, 448, 642 नहीं, 448, 460। तो ये आ जाएगा दोस्तों 460,800, राइट। तो आंसर इसका आ जाएगा 460,800। ये आंसर है दोस्तों, राइट। और ये होप आपको समझ में आएगा क्योंकि रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग में बात करता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो 8/7/8 हो गया भाई, 8 रुपये थे पहले, एक खर्चा हो गया, 7 बचे। सिमिलरली 1/6, और देखो यहाँ पे यार एरर हो गया, इसको दोबारा से करना पड़ेगा। Okay, so we have the next question. Rahul spends 12.5% of the monthly income, right? तो 12.5% का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है दोस्तों, ये होता है 1/8। 16.66% का फ्रैक्शन होता है 1/6। 18.75% का फ्रैक्शन पार्ट होता है दोस्तों 3/16, ये आप चेक कर लेना, और 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, राइट। अब इस पर हम सक्सेसिव परसेंटेज जो रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग खर्चा करते हैं, तो जो फाइनल वैल्यू है
पहले उसके पास इनिशियली 8 रुपये की इनकम थी, एक खर्चा हो गया तो 7 बचा। उसके बाद अगर उसकी इनकम 6 थी तो उसमें से एक खर्चा हो गया तो 5 बचेगा। उसके बाद उनकी इनकम 16 थी तो एक खर्चा हो गया 13 बचेगा। उसके बाद इसकी इनकम 3 थी, एक खर्चा हो गया तो 2 बचेगा। और ये दोस्तों जो फाइनल वैल्यू दे रखी है ये ऑफ इनिशियल है, राइट। तो फाइनल वैल्यू तो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 27,300। तो यहाँ से दोस्तों 7 इंटू 5 इंटू 13 अपॉन 2 और 8 इंटू 6 इंटू 16 इंटू 3 इंटू आई बोले तो इनकम, राइट, या इनिशियल वैल्यू। तो 7 × 21 6 7 × 63 और 13 × 39 दोस्तों, 13 × 39 और 2 से हो जाएगा 150, राइट। तो जो इनिशियल वैल्यू है आई वो आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 16 इंटू 3 इंटू 150। तो 150 इंटू 3 450 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 16, तो 450 8 इंटू 8 360, 3600 इंटू 6 इंटू 16, राइट। तो 3600 इंटू 6 इंटू 16, तो 0 0 216 इंटू 16 0 0 16 6 96 और 16 एकम 16 9 25 और 16 दिया 16 दूनी 32 और 2 34। तो 3,45,600 उसका राइट आंसर है, राइट। तो 3,45,600 उसकी इनिशियल इनकम है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इससे बेस्ट नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकम ऑफ अंकित इज 60% मोर देन ऑफ श्रीकांत एंड द इनकम ऑफ श्रीकांत इज 20% लेस देन ऑफ शिशिर। ठीक है, तो अंकित, श्रीकांत और शिशिर, राइट। तो शिशिर की इनकम को मान लेते हैं 100%, राइट। तो अगर इसकी 100x है तो श्रीकांत की इनकम 20% कम है, तो इसका 80x हो जाएगा भाई, -20% है इधर। और अंकित की 60% ज़्यादा है तो इसका 60% हो जाएगा 48, तो 148, तो इसका मतलब 128x हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। शिशिर की इनकम कम हो गई 12% से, तो 88x बचेगा। एंड श्रीकांत की बढ़ गई 20%, तो इसका 20% कितना होगा 16, तो ये 96x हो जाएगा। देन द परसेंट बाय विच शिशिर इनकम वुड बिकम लेस देन द श्रीकांत इनकम, राइट। तो शिशिर की इनकम कितना कम है, तो शिशिर की इनकम तो अब 8x कम है भाई, शिशिर की श्रीकांत से 8x कम है, तो 8x विद रेस्पेक्ट टू 96x इंटू 100, तो ये 1/12 इंटू 100, तो 8.33, तो अराउंड 8% के आसपास इसका राइट आंसर है। 8.33% से लेस हो जाएगी, राइट। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So in this question it is saying that data scientists predicted that 20% of people who consume alcohol get liver damage and 80% of the liver patient consume alcohol and 30% of the population consumes alcohol and the percentage of the total population having liver damage। आप एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, राइट, आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन 100x है। हाँ, ये आपके पास टोटल जनसंख्या है या पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, राइट ना। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 30% पीते हैं अल्कोहल। हाँ, 30% हो जाएगा इसका 30x, ये अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। एंड जो कंज्यूम करते हैं उसमें से 20% को लीवर डैमेज है। इसका मतलब इसका अगर मैं 20% करूँगा तो ये आएगा 6x, इसका लीवर डैमेज है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इट इज सेइंग दैट 80% द लीवर पेशेंट कंज्यूम अल्कोहल। इसका मतलब कि ये जो 6x है ये अल्कोहल पीते हैं और इनका लीवर डैमेज है, राइट। और पूरे गांव में 80% ऑफ द लीवर पेशेंट, ठीक है। अब ये जो लोग हैं जिनका लीवर ये डैमेज है तो अल्कोहल पीने वाले ही तो हैं, और इनकी वैल्यू 80% ऑफ द जो लीवर डैमेज वाले हैं ये 6x के बराबर है। मतलब ये जो गांव में जो लोग हैं जो 6x हैं ये 80% पॉपुलेशन के बराबर हैं। तो यहाँ से अगर मुझे 1% की वैल्यू निकालनी है, राइट, तो यह काम करते हैं इसका 4/5 कर लेते हैं। हाँ, 4/5 ऑफ लीवर डैमेज, ये दोस्तों 6x के बराबर है। यहाँ से लीवर डैमेज टोटल आ जाएगा 7.5x। तो 7.5x कितना परसेंट हो गया दोस्तों, तो 7.5% हो गया सीधा सीधा। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था, आप एक बार लैंग्वेज इसकी समझने की कोशिश करना, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 5 फ्रेंड ABCDE एंड इनकम ऑफ B इज 20% लेस देन इनकम ऑफ A, इनकम ऑफ C, राइट। तो इस तरह से आपको बोल रखा है, तो आपको बोलता है E का इनकम कितना परसेंट ज़्यादा है A से। तो ABCDE ऐसा, राइट। तो नाउ इनकम ऑफ B इज 20% लेस देन A, इनकम ऑफ C 12.5% B से ज़्यादा है, D का इनकम C से ज़्यादा है और E से कम है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसमें अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इनकम ऑफ बी इज़ 20% लेस देन दैट ऑफ ए। तो अगर ये इसकी 80x है, 100x है, तो इसका 80x हो जाएगा बी का, कोई दिक्कत नहीं। और इनकम ऑफ सी इज़ 12.5% मोर, तो इसका 12.5% दैट इज़ 1/8। तो 1/8 ऑफ 80x ये हो जाएगा दोस्तों 10x। तो सी का इनकम मोर है ना, ये 12.5% ज़्यादा है, इसका मतलब ये 90x हो जाएगा भाई, 10x ऐड कर देंगे। नाउ डी का इनकम 33.33% मोर है सी से, तो 33.33% मोर प्लस 1/3, तो 1/3 ऑफ 90x ये हो जाएगा 30x, तो ये 120x हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 30 प्लस हो जाएगा इसमें। एंड फाइनली ये जो 14.28% कम है ई से, राइट, 14.28% कम है ई से, सी की इनकम, राइट, मोर देन सी। द इनकम ऑफ डी इज 33.33%, लेकिन ठीक है, अब 14.28% का फ्रैक्शन अगर आप जानते हैं तो 1/7 है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 7K है तो इसकी 6K होगी, क्योंकि डी की इनकम 14.28% लेस है। तो 6K का वैल्यू 120x है, क्योंकि सारे आंसर आपको x में चाहिए, तो 6K को अगर आप 120x बोलते हैं तो k का वैल्यू 20x हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 7x का वैल्यू 140x हो जाएगा। तो वी हैव ऑल द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ x नाउ। तो बोलता है ई का इनकम कितना ज़्यादा है ए से। तो अगर मैं ई और ए को कंपेयर करता हूँ तो इसकी 100x है, इसके 140 है, तो सीधा सीधा 40% आंसर आ गया। बहुत ही अल्टीमेट तरीका था, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं वार्म अप क्वेश्चंस में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, और पूरा का पूरा जो सेशन रहेगा जिसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे आप उसको फॉलो करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब कॉन्कर 99 और प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना।